ओके सिद्धांत, स्टार्ट करते हैं। आपका फुल मॉक फॉर IOCL, ठीक है ना? एंड यू आर फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड। Yes, sir. तो फर्स्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ सिद्धांत। Okay, sir. Sir, my name is Siddhant, and I belongs to Gondia district, which is near to Nagpur. And my father works as a part speaker in Honda showroom. And along this, my father works as a farmer also. And sir, I want to mention that my father is the most hardworking person I have seen ever, and I have learned lot of things from my father. My mother works as a housewife. She takes care of home, and I have one younger brother and one younger sister. Sir, I have completed BTech in Instrumentation Engineering from the Government College of Engineering, Jalgaon. And sir, I did job in Thyrocare Technologies Limited as a maintenance engineer. And sir, presently I'm preparing for various exams for PSU and government sector. Sir, I have did my third year project on automatic gas leakage detection using Arduino and alert system. And sir, I have completed my final year project on automatic attendance system using facial recognition. तो यू डिड वर्क इन थायरोकॉइल, कौन सी कंपनी है? कैन यू टेल? Uh, yes, sir. Thyrocare Technologies Limited. थायरोकेयर को टेक्नोलॉजी Yes, sir. एज ए As a sir, maintenance engineer. मेंटेनेंस इंजीनियर। व्हाई डिड यू लेफ्ट दैट जॉब? Sir, actually, I was preparing for GATE, and sir, that time I was decided to do a job simultaneously with the study. तो सर एक्चुअली मैं वहाँ पे उतना मतलब स्टडी गेट के लिए उतना टाइम नहीं दे पा रहा था जितना मुझे देना चाहिए था। तो सर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक एक चीज को फॉलो करूँ, इसलिए सर मैंने घर में भी बात की। तो घर में भी मैंने पूछा कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, तो घर में भी सपोर्ट सपोर्ट किया और बोले हाँ ठीक है। तो सर मैंने एक्चुअली मतलब मेन रीजन यही था कि मुझे गेट पे ज्यादा फोकस करना था, इसलिए सर मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो व्हाट इज योर गेट स्कोर? सर माय गेट स्कोर इज 251। एंड योर रैंक? रैंक इज 3500। 3005। यस सर। ओके। एंड your project was the automatic gas detection यस सर। यस सर। and another one is the face फेस डिटेक्शन सर, फेस डिटेक्शन ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम यूजिंग फेस रिकॉग्निशन। अच्छा, ये आपने इसमें क्या किया? आपके प्रोजेक्ट में क्या था जो सर गैस डिटेक्शन में? सर गैस डिटेक्शन एक्चुअली सर गैस लीकेज जो है आजकल मतलब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रीज, residences and vehicle like CNG. And sir, there are so many accidents happening due to the gas leakage. And sir, there are so many hazardous area where the gas leakage can affect to the employees also who is working in the hazardous area. So sir, my project is based on the automatic gas leakage, which is based on the sir gas sensor MQ135 gas sensor. So actually this system detects when the gas is leakage. So this gas sensor actually detects the gas leakage and send analog signal to the Arduino. Then sir Arduino automatically send signal to the GSM module. Means sir it is a communication module that send notification to the user mobile number. And also sir, this system automatically start the exhaust fan and buzzer. The exhaust fan is used to suck the gas out of the room, and the sir buzzer is used to alert the surrounding people. ओके। अच्छा, कैन वी इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम टू अ लॉन्ग, क्या बोलते हैं अपना, गैस पाइपलाइन? Yes sir, install कर सकते हैं। अच्छा, इन थायरोकेयर व्हाट वाज योर जॉब? सर इन थायरोकेयर एक्चुअली सर थायरोकेयर में मैं सर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग करता था, उसके बाद वाटर प्लांट मॉनिटरिंग करता था, उसके बाद सर रूटीन मेंटेनेंस ऑफ एडविया एनालाइजर होते हैं सर, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्लड टेस्ट होते हैं जहाँ पे सर एनालाइजर्स में। तो उनका डेली मेंटेनेंस, डेली एंड वीकली एंड मंथली मेंटेनेंस होता था सर। ओके। अच्छा, आप IOCL के बारे में क्या जानते हैं?
Sir, IOCL is one of the most prestigious company, and we know that it is a Maharatna company. And sir, it has ranked 142 in the global 500 Fortune companies. And sir, it is a most growing sector in the energy sector. And sir, it is a government-owned oil and natural gas explorer and producer also. And its headquarter is in the New Delhi. And sir, IOCL means its all activity are overseen by the Ministry of Petroleum and Natural Gas. Okay. Acha, who is the petroleum minister? The petroleum minister is Hardeep Singh Puri, sir. I think he is cabinet minister, and Rameshwar Tele is state minister. अच्छा, रिसेंटली कंट्री से हमारा फ्यूल का एक्सपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट सॉरी, उस कंट्री का नाम क्या है? Sir, I am not aware about that. अच्छा, ओपेक कंट्रीज के बारे में जानते हैं आप? क्या सर? ओपेक कंट्री? नो सर. ओपेक के बारे में नहीं जानते? नो सर. Okay. अच्छा, ये जो क्या बोलते हैं, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा वो चल रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल, ठीक है ना? तो हाउ डू यू सी दैट प्रोग्रेस इन रिस्पेक्ट ऑफ, एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ योर पेट्रोलियम इंडस्ट्री? यस सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सर जो हमारा ऑयल है वो है सर, एक ना एक दिन ये तो खत्म होने वाला ही है सर, क्योंकि हम इतना जो यूज कर रहे हैं, तो सर उसके लिए अल्टरनेटिव तो चाहिए ही. लेकिन सर अगर हमारे पास जो पेट्रोल पंप है तो उस पर सर हम चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, जिससे क्या होगा कि मतलब जो हमारा आईओसीएल का बिजनेस है वो भी एक्सपांड होगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर हम वहाँ पे. और सर आई थिंक आईओसीएल ने मोर देन 15,000, नो सर, मोर देन 2,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का इंस्टॉलेशन कर दिया है. तो सर मुझे लगता है कि इससे थोड़ा मतलब पॉल्यूशन भी कम होगा. अच्छा, ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन में कौन सी बैटरी जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में आजकल प्रीफर कर रहे हैं? Okay. ओके सिद्धांत, ये बताइए मेरे को, अब you got selected and you become a general manager of a refinery, ठीक है ना? तो what do you think, what will be your daily routine? Daily routine, sir. Sir, daily routine means as we are employee means general manager. So sir, I think that I should be able to make some policies that ऐसी policies जो कि सर organization को policy daily but बनाओगे? I am talking about the daily routine, not about the policy. Okay sir, daily routines means sir monitoring of all the employees which are working properly or not, and whatever the projects are pending, so how the employee will complete it on the time, and also sir monitoring all those activities which are essential to complete in a time. So I will sir monitor all these things to complete all the things within a time. Okay. आपकी हॉबीज क्या क्या है सिद्धांत? सर हॉबीज, सर एक्चुअली मेरी हॉबी तो सिंगिंग है सर, एंड लिसनिंग सॉन्ग. सिंगिंग? यस सर. तो कौन से गाने गाते हैं, बॉलीवुड या फिर अपने कौन से किस टाइप के गाने गाते हैं? हाँ सर, नॉर्मली बॉलीवुड ही सुनना और गाना पसंद है. गाना पसंद है? हाँ तो सर. कोई गाना गा के दिखाइए. ओके सर.
कैसे बताए कि तुझको चाहे, यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी, आके तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना, मिलके भी हम ना मिले, तुमसे ना जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है फासले, तुमसे न जाने क्यों। ओके ये सिद्धांत, गुड। ओके। हाँ ठीक है, सिंगिंग आपका हॉबी है और यू डू इट वेल, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये जो आपका प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिक फेस डिटेक्शन, ठीक है, ओके। क्या ये अटेंडेंस में भी यूज किया जा सकता है? हाँ सर, अटेंडेंस सर, ये जो प्रोजेक्ट है वो उसी पे बेस्ड था कि हमें सर ऑटोमेटिक अटेंडेंस हमें इम्प्लीमेंट करना है। एक्चुअली क्या होता है कि सर जो करंट मेथड है अटेंडेंस की, अटेंडेंस जो हम कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में जो होती है सर, एक्चुअली वो एक तो रोल कॉल्स होते हैं या फिर अटेंडेंस शीट पास की जाती है सर। तो हम्म, सर हमने सोचा कि क्यों ना हम इसे ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट करें कि जिससे क्या होगा कि सर सिस्टम ऑटोमेटिकली इट विल फेस, सर इट विल डिटेक्ट द ह्यूमन फेस, हम्म, and it will detect the human face, and sir it will extract the feature of human face, हम्म, and sir there is already one database store means sir हमें क्या करना है कि हमें पहले ही कुछ सेवरल इमेजेस ऑफ पर्सन हमें स्टोर करके रखना है हमारे सिस्टम में। हम्म, तो जैसे कैमरा कैप्चर करेगा इमेज को, तो सर फर्स्ट वो डिटेक्ट करेगा कि हाँ कि ह्यूमन ह्यूमन फेस है या नहीं है, क्योंकि सर अगर अगर हमारी एक फोटो फ्रेम है जिसमें ह्यूमंस है या ट्रीज है या बर्ड्स है, तो एक्चुअली हम हमारी फोर्सेस हमारी हमारी सिस्टम सिर्फ ह्यूमन फेस पे फोकस करेगी हम्म, और उसके फीचर एक्सट्रैक्ट करेगी। सर आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स इट विल कंपेयर दैट फीचर्स विद द ऑलरेडी स्टोर्ड डेटाबेस फीचर्स, and sir if there is a match then sir this system will automatically detect a person and it will mark the attendance of that particular person. हम्म। अच्छा मेरे को ये बताइए, हाँ, हमें ये हमारी पाइपलाइन है, ठीक है ना, Okay. Okay sir. गैस पाइपलाइन है और एक क्रूड ऑयल की और या पेट्रोल की पाइपलाइन है, इन दोनों में प्रेशर मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है? कुछ आइडिया है कैसे, हाउ विल मेजर द प्रेशर? सर दोनों मतलब गैस भी है और ऑयल भी है ना। एक में गैस है एक में ऑयल है, दोनों के प्रेशर मेजरमेंट में क्या डिफरेंस होगा और हाउ डू वी मेजर द प्रेशर? सर एनी फॉर आइडिया? प्रेशर मेजरमेंट के लिए हमारे पास तो डिवाइसेस है, बट सर एग्जैक्टली कौन सा यूज करेंगे वो श्योर नहीं बता सकता सर मैं। चलो ठीक है, नाउ सर विल टेक मोर टेक्निकल, विनय सर, ठीक है, ओके सर। आई विल गिव यू फीडबैक। Okay, Siddhant, please wait 1 minute. I will take after 1 minute. Okay. ओके ओके सर। कोई नहीं सर, मैं और पूछता हूँ, ठीक है। हाँ विनय, सॉरी, हाँ सर, सिद्धांत, हाँ सर, 1-2 मिनट कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ कोई बात नहीं, हाँ सिद्धांत, हाँ ओके सर। ओके चलो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बताओ मेरे को। सर फेवरेट सब्जेक्ट इज सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, दैट इज इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, मेजरमेंट एंड कंट्रोल, कंट्रोल सिस्टम। मेजरमेंट एंड कंट्रोल, अच्छा, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपका फेवरेट है, ठीक है। यस अच्छा मेरे को सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी बताओ, मेरे को तो बेसिक जानने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। सर। ओके सर। So sir, first thing is that any instrument should be sir, it should be linear, and sir its accuracy should be high, and sir its sensitivity should be high. Then it should have good resolution. ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है, ठीक है ना, आई एम Uh, टॉकिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसकी, इंस्ट्रूमेंट का बेसिक डिजाइन का मोटो क्या है? uh,
सर मोटो यही है कि सर हमें फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, मेजर करके उसे कंट्रोल भी करना है एंड सर उसे मॉनिटर भी करना है। तो सर रिक्वायरमेंट यही होगा कि सर उसका साइज जो है इंस्ट्रूमेंट का वो मतलब लेस साइज लेस होना चाहिए। उसके बाद सर कॉस्ट कॉस्ट इट्स आल्सो मैटर, कॉस्ट भी उसकी कंडीशन ये है कि ये इट शुड नॉट अल्टर द सर्किट कंडीशन इन विच इट इज गोइंग टू मेजर द क्वांटिटी, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, तो इसका मतलब यहीं से सारी क्वालिटीज आती हैं इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। लीनियर भी यहीं से आएगा, एक्यूरेट भी यहीं से आएगा, ठीक है। और उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, वो सारी चीजें यहीं से आएंगी। करंट मेजर करनी है तो रेजिस्टेंस अल्टर ना करे कंडीशन, अगर रेजिस्टेंस जीरो होगा तभी वो सर्किट की कंडीशन अल्टर नहीं करेगा, तो इसका मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। वोल्ट मीटर में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी तभी वो सर्किट की कंडीशन अल्टर नहीं करेगा, अदरवाइज देयर इज लॉसेस, ठीक है ना। बेसिक इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी यही होती है, ठीक है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ अदर, ठीक है ना, टेक्निकल। सीटीपीटी देखे हैं आपने? यस सर। सीटीपीटी, करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, हाँ यस सर। कैन यू आइडेंटिफाई? सर बाय सीइंग नॉट सर, बाय सीइंग नहीं पहचान सकता। ओके, तो आपने फिर क्या देखा? आपने बोला देखे। अच्छा, ओके। ओके ओके सिद्धांत, हेलो। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें। Okay, Siddhanta, as you told, your favorite subjects are measurement, transducer, control, और कोई बोला आप कौन कौन सी हैं और इसके सर अलावा? तीन ही बोलो। तीन ही बोले हैं, हाँ सर। ठीक है। तो इन द कंट्रोल सिस्टम, what is the difference between polar plot and Nyquist plot? Why we required the two different plot? Sir, actually, Nyquist plot is based on the right hand side pole, sir. Means Nyquist plot determines the poles in the right hand side and it concludes the stability of the system. तो स्टेबिलिटी हम पोलर प्लॉट से नहीं निकाल सकते? हाँ सर, पोलर प्लॉट से भी निकाल सकते हैं, बट सर Nyquist plot is a complete frequency response analysis. Complete frequency analysis. Okay. Yes. अच्छा, polar, how we find the stability from the polar plot? Sir, polar plot. Sir, Sir, actually not able to answer this question. Okay. In the Nyquist plot, how to find how many poles are in the left or right or on imaginary? Yes, sir. So there is a one formula, that is encirclement formula, n is equals to p minus n. Sir, p means number of right hand side poles of open loop transfer function, and z means number of right hand side poles of closed loop transfer function. Sir, if we know the encirclement, then we can find the stability of the system. किसका encirclement निकालना होता है? n क्या है? What is the n? So n is encirclement with respect to -1 plus j0. Why we find the encirclement of -1 with j0? We should find the encirclement of origin, or can we find the encirclement of origin in different conditions? Sir, actually what happened towards origin, the stability is not, it is not stable. So we assume -1 plus j0 for stability conclusion. What is this stability not stable for the origin? What is this region? कुछ रीजन तो होना चाहिए, 0 के लिए कैसे स्टेबल नहीं है बताएं? Sir, but it is a sir, near to the instability, no? If we consider 0 axis. हाँ, तो -1 j0 की जगह अपन एक काम करते हैं ना, -10 j0 ले लेते हैं और स्टेबल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? It will be more stable. -100 j0 ले लेते हैं, it will be more stable as your logic. Understand? Yes sir. Then why only -1 j0? Sir, I don't know. Okay. uh,
in the control system, suppose the system is not stable, practically what happened? Why are we required to find the stability? Sir, if there is no stability, so system will be oscillate, and sir, we will not get the steady state output properly. So I think, that's why stability is important. Stability is important. In RH criteria, Yes, sir. what is the drawback to find the calculation of the step? Sir, actually in RH, we don't know the exact location of poles and zeros. Hmm. So that's why I think it's disadvantage. Okay, any other? Suppose in the RH criteria, one row is completed 0, then what you comment about the system and what you conclude from this? Sir, if one row of 0 means it has what we can say that the complex poles which are conjugate to each other, sir. Complex pole conjugate to each other. Means poles are symmetric to origin, sir. Actually. Symmetric to origin. Yes, sir. If one ROZ row is there, it means poles are symmetric about the origin. And how many poles will be symmetric? क्या हम ये पता लगा सकते हैं? So by finding auxiliary equation, we can find number of symmetric poles. Suppose write down the auxiliary equation. Sir, 1 minute. Sir, yes, sir. Tell me. 5 s की power 5. 5 s to the power 5 plus 3s cube 3s cube plus 10s equal to 0. equals to 0. अब बताएं आपने क्या इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से देख के आइडिया लगाया? आपने बोला ऑक्सिलरी इक्वेशन से देख के हम आइडिया लगाएंगे, बताएं. Sir, actually, auxiliary equation exists for even power of s. अच्छा, हमेशा इवन के लिए होती है? Sir, in most of the cases, actually, auxiliary equation is formed for the even power. मोस्ट ऑफ द केसेस. तो ये आपने मोस्ट ऑफ द केसेस बोला ना, तो ये स्पेशल केस हो गया. अब बताएं, या तो आपको ये बोलना चाहिए कि सर इन एवरी केस, है ना. अगर आप मोस्ट ऑफ द केस बोल रहे हैं तो इट इज द वन ऑफ द स्पेशल केस. लीजिए बताइए. So by differentiating auxiliary equation, we can get na sir, but तो क्या कंक्लूड किया फिर सिद्धांत आपने इससे? सर ऑक्सिलरी इक्वेशन में सर कॉम्प्लेक्स पोल्स होते हैं ना सर, सिमेट्रिक होते हैं, तो सर मेरे ख्याल से ऑड पावर के लिए हम नहीं निकाल सकते क्योंकि सिमेट्रिक तो बोले ना. हाँ, तो मोस्ट ऑफ द बोले, आप ये बोलिए कि सर कभी नहीं निकाल सकते. ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑलवेज हैव द इवन पावर, है ना. ये हमेशा बोले. आपने मोस्ट ऑफ द केस बोला तो मैंने स्पेशल केस बोल दिया. ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. चले, ओके, ठीक है. नेक्स्ट अपन बात करें, कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसड्यूसर का यूज कहाँ पर होता है? ट्रांसड्यूसर का यूज सर हम कंट्रोलर्स में कर सकते हैं सर. कंट्रोलर में करते. कंट्रोलर में क्या होगा अगर उसका यूज वहां करेंगे? जरा कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताएं जरा कि सर ये जैसे हमारा जैसे सर हमारा लेवल मेजरमेंट सिस्टम हुआ. हाँ, तो सर हमें एक टैंक में अगर लेवल को अगर हमें मेंटेन रखना है तो सर हम वहाँ पे वॉल्स लगाएंगे, एक्चुएटर्स लगाएंगे और कंट्रोलर्स लगाएंगे सर लेवल को कंट्रोल करने के लिए. मुझे आपके आंसर से अभी भी समझ नहीं आया कि कंट्रोलर में ट्रांसड्यूसर कैसे लगा हुआ है. कंट्रोलर कहाँ होता है? फॉरवर्ड पाथ में होता है. यस सर.
हाँ, तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ट्रांसड्यूसर कंट्रोलर में लगेगा, बस ये बताएं आप मुझे। जैसे सेंसर कंट्रोलर्स में नहीं लगेगा। अगर हम कोई एक अरेंजमेंट यूज कर रहे हैं या सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वहां पे सर हम कंट्रोलर का यूज कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन, व्हाट वाज माय क्वेश्चन? माय क्वेश्चन था कि ट्रांसड्यूसर कहाँ पर लगाते हैं? आपने बोला कंट्रोलर में लगाते हैं, तो वो मैंने बोला उसे जस्टिफाई करें किसी एग्जांपल से। समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर है? ओके सर। नहीं सर, कंट्रोलर में तो हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते, लेकिन हम कंट्रोलर का हेल्प ले सकते हैं सेंसर। फीडबैक में लगाएंगे, है ना? ट्रांसड्यूसर और सेंसर्स फीडबैक एलिमेंट होते हैं, फीडबैक में लगाते हैं, जो कि आपको सेंस करेंगे और कन्वर्ट करेंगे। ट्रांसड्यूसर का व्हाट इज द ट्रांसड्यूसर? बेसिक कंसेप्ट क्या है ट्रांसड्यूसर का? सर ट्रांसड्यूसर एक्चुअली कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म। बस यही हमको चाहिए। जब हम कंपेयर करते हैं इन द कंट्रोल सिस्टम, वी रिक्वायर टू कंपेयर द थिंग्स जो आउटपुट में आ रहा है विद द इनपुट, रेफरेंस इनपुट। ओके ओके सर। ओके सिद्धांत, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कंट्रोल सिस्टम में जो हम आरएच क्राइटेरिया पढ़ते हैं, सपोज एक आरएच क्राइटेरिया में हमारा राइट डाउन द क्वेश्चन लिखे एक पहले, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको। In this question we have 5s plus 1 in numerator 5s plus 1। and denominator यस सर। s cube, s क्यूब। हाँ, s क्यूब plus 2 cos 3 2 cos 3 s, s ठीक है, प्लस 3 इक्वल, बस प्लस 3। प्लस 3 सर, 2 cos 3s ना। यस सर। है ना? तो अब क्या है, इसके लिए कैसे निकालोगे आप आरएस क्राइटेरिया का यूज करके? Sir, actually, I am not aware about such type of problems in RH criteria. Okay. Dominant, what is the dominant pole? So dominant pole means we have to consider it during its means सर हमें अगर स्टेबिलिटी को अगर एनालाइज करना है सर, तो डोमिनेंट पोल को हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा, which can affect its stability। सिस्टम की स्टेबिलिटी को जो अफेक्ट कर सकता है सर, उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट पोल। अच्छा, और इसके बारे में कहाँ मिलेगा ये डोमिनेंट पोल? ये ठीक है, ये स्टेबिलिटी अफेक्ट करता है, ये आपका एक रीजन आया, डेट इज गुड, ये सही है। तो डोमिनेंट पोल और इनसिग्निफिकेंट पोल को अगर आप कंपेयर करें, सपोज मैं आपको एक पोल दे रहा हूँ, वी हैव द पोल्स एट टू लोकेशन -1 एंड -10, -1 and minus, है ना? yes, विच पोल विल बी डोमिनेंट, विच विल बी इनसिग्निफिकेंट एंड व्हाई? okay sir। So sir, -1 it is significant pole and -10 sir it is insignificant pole। डोमिनेंट कहाँ है? डोमिनेंट कौन सा है? डोमिनेंट यानी वही ना सर, सिग्निफिकेंट पोल वही। अच्छा, सिग्निफिकेंट कोई डोमिनेंट पोल, ओके। हाँ सर। इन दोनों पोल के लिए कैन वी फाइंड द टाइम कांस्टेंट? यस सर, फाइंड कर सकते हैं। क्या है बताएं, दोनों पोल के लिए जरा बताएं टाइम कांस्टेंट क्या होगा? Sir, one time constant for significant pole is 1, for insignificant pole it is 1/10। अच्छा, both the poles are from the one system, ठीक है, दोनों पोल एक ही सिस्टम के हैं, ठीक है। Okay sir। अब सिस्टम का टाइम कांस्टेंट क्या होगा? Sir, please repeat the question। ये दोनों पोल किसी एक सिस्टम के हैं, ट्रांसफर फंक्शन में आपको दूं अगर 1/s+1 1/s+10, अगर both the poles belongs to the single system, okay, then now what will be the time constant of the system? sir it is 1 actually, because we can neglect sir, because this time constant is very less, so sir we can neglect this। अच्छा, सपोज अगर मैं आपको एक पोल दे देता 1 पे और एक दे देता 3 पे, okay है ना? टाइम कांस्टेंट विल बी 1 and 1/3, then okay sir। now what Sir, will be the time constant? अभी भी 1 ही होगा कि अभी क्या करेंगे? नहीं सर, सर इस केस में हम इग्नोर नहीं कर सकते सर।
तो फिर क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट क्या होगा, कैसे निकालेंगे? सर ये जो सिस्टम है सर, दोनों कैस्केड में कनेक्ट है क्या? अगर कोई नहीं, सिस्टम दोनों है तो? दो सिस्टम नहीं है, एक ही सिस्टम है, एक ही के पोल हाँ है। हाँ, एक ही की पोल है। तो ओके। फिर कैस्केड कहाँ बोल रहे सो थिंक सर टाइम कांस्टेंट ऐड हो गई होगी। टाइम कांस्टेंट ऐड होगा 1+1/3, 4/3। 1+1/3। सर एक्चुअली मतलब क्या होगा कि सर सिग्निफिकेंट पोल और जो इनसिग्निफिकेंट पोल है सर, उसकी कंडीशन ये है कि सर इफ इफ सपोज। हाँ ठीक है, ठीक है, एक पोल पर उसके 5 टाइम ज्यादा हो, पर ऐसा हो हाँ सकता है ना, ऐसे पोल ऐसे होंगे, वो ठीक है, अगर वो इनसिग्निफिकेंट होता तो उसे आप कंसीडर नहीं करते, दैट इज ओके। मैं हाँ बोल रहा हूँ ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, पोल हो सकते नहीं हो सकते, किसी सिस्टम के हो सकते हैं, हाँ, हो सकते हैं सर। तो फिर क्या करेंगे? सर सर इन केस में तो दोनों सिग्निफिकेंट ही पोल हो जाएंगे ना। हाँ वो तो फिर वही तो बोल रहा हूँ, अभी सिस्टम का एक टाइम कांस्टेंट भी होगा, सिस्टम हाँ अपने सर। टाइम कांस्टेंट के साथ चलेगा, तो अब कैसे टाइम कांस्टेंट निकालेंगे, हाउ वी विल फाइंड दिस टाइम कांस्टेंट इन दिस सिचुएशन? सर आई डोंट नो। ओके, ओके सिद्धांत, योर टाइम हैज बीन कंप्लीटेड। सिद्धांत, मेरा फीडबैक आपके टेक्निकल के लिए है, पहले आप ये था आपका डेट ऑफ इंटरव्यू कब है? सर 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को है, ओके। आपका टेक्निकल ठीक है, मतलब इट इज अबाउट द एवरेज, है ओके ना? सर। ठीक है। कुछ कंसेप्ट हैं आप में ना, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम आप बोलने के जा रहे हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन आपकी ब्रांच है, तो कंट्रोल आई थिंक उसका मेजर सब्जेक्ट ही होता है इंस्ट्रूमेंटेशन का, है ना? ओके। तो इसके कुछ कंसेप्ट हैं, थोड़े जैसे आपको मैं क्या बोलता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ कि एक तो डेफिनेशन लेवल का है कि आपने सब्जेक्ट के डेफिनेशन डेफिनेशन पढ़ ली है, तो ओके सर। आपका वो लेवल क्लियर है, यू नो द कंसेप्ट कि ये क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे लेवल पे। दूसरा लेवल क्या है कि सब कंसेप्ट को थोड़ा डीप में जानना, कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, वैसा ही क्यों हो रहा है, थोड़ा सा डीप, ज्यादा डीप नहीं, वो थर्ड लेवल पे मानता हूँ। तो आपको दूसरे लेवल से थोड़ा सा ज्यादा आता है, मतलब ना तो तीसरे लेवल पे हो एग्जैक्टली कि आपको दूसरा लेवल पे हर एक कंसेप्ट आता है कि ये ऐसा ही क्यों हो रहा है ना? जैसे अपन ने -1+J0 का बोला, है ना, आपको पता है -1+J0 के इंसर्कलमेंट करते हैं, पर क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि नाइक्वेस्ट प्लॉट में हम क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी निकालते हैं यूजिंग द ओपन लूप सिस्टम, यस सर। है ना, पढ़ा है? यस सर। अब ओपन लूप सिस्टम से कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, सी क्या होता है हमारा, 1+GSHS=0, हम्म। है ना? अब GSHS= क्या आ जाएगा? GSHS= -1+J0 आ जाएगा, हम हम्म। आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसलिए यस। -1+J0 का हम इंसर्कलमेंट निकालते हैं, ओके। है ना, पहली बात। ठीक है, और अपन लास्ट में क्या है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको को ऊपरी लेवल तो है, तो अगर आप थोड़ा सा इसको डीप में और पढ़ पाए कोई चीज है ना, कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो पूछ सकते हैं। तो यही मेरा फीडबैक है, बाकी ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी मुझे ठीक लगा, है ना, आंसर डिलीवरिंग भी ठीक है ना? यस सर। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे? सर ये जो आप क्वेश्चन पूछे थे कि टाउ जी को 1 and 1/3, तो सर इसका टाइम कांस्टेंट कैसे हाँ, ऐड होता है? इसके देखो क्या करोगे इस क्वेश्चन में, सिंपल सी बात है, इन दिस केस यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, सॉल्यूशन निकालोगे, आप सिस्टम का सॉल्यूशन निकल आएगा, हाँ। है ना? और फिर सॉल्यूशन से टाइम कांस्टेंट निकाल लोगे, किसी भी मैंने आपको कोई इक्वेशन दी है आउटपुट पे, तो उससे टाइम कांस्टेंट निकल सकता है कि निकल सकता है? या तो आप ग्राफिकली निकाल लो, सॉल्यूशन बना लो, और t=small t=, कैपिटल टी पुट करके निकाल लो, ओके। पहली बात, है ना? दूसरा मैथमेटिकल निकाल लो, मैथमेटिकल भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं, है ना? तो सर टाइम कांस्टेंट ऐड होगा ही ना? वो नहीं, टाइम कांस्टेंट ऐड कैसे होगा, कैसे कह सकते हो आप टाइम कांस्टेंट ऐड होगा? फिर अगेन कैसे पता है आपको? मैं फिर बताओ, मेरे बोलने से कैसे लग रहा है आपको ऐड हो रहा है? क्योंकि सर जैसे अगर हमारे पास इसका भी एक ट्रांसफर फंक्शन है, इसका भी ट्रांसफर फंक्शन है। आप एक काम करना, आपको मैं एक ट्रांसफर फंक्शन लिख दे रहा हूँ, 1/1+S और 1/S+3, ठीक है? +3। ओके सर। है ना? इनपुट ले लेना यूटी, जरा इसका निकाल के देख लेना ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके सर। ठीक है ना? ठीक। ठीक है इट सर। विल नॉट बी ऐड ऑल द टाइम, इट मे बी, हो सकता है, मुझे मुझे नहीं पता कि हो भी जाए, पर अगर ओके ऐसा ओके ऐड होता तो अपन कंसेप्ट में पढ़ लेते कि टाइम कांस्टेंट ऐड होगा हमेशा, ओके 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 है ना? ऐसा नहीं है, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो भी जाए, पर ऐसा कभी नहीं है कि हमेशा ही हो, ठीक है? ओके ओके। ओके, ओके सर, ओके सर, प्लीज कंटिन्यू।
हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस सर। विजेंद्र सर। विजेंद्र सर। हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है। तो क्लियर हुआ मेरा वीडियो और आपका इंटरव्यू है, बट थोड़ा सा मुझे एक बात और भी लगी, थोड़ा हाँ सा हाँ अ, सर। हाँ फेशियल एक्सप्रेशन भी देखें, है ना? ओके सर। ठीक है, तो ओके स्माइल, सर। थोड़ा स्माइल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा स्माइल करें, कभी क्वेश्चन आपके आ रहा है तो उनको पॉजिटिव वे में लगे, ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप उनको हंस रहे हो, तो स्माइल भी कब करना है, डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ओके ना? सर, जब आंसर डिलीवर करते हैं उस समय हाँ स्माइल कर सकते हैं। बिल्कुल, या आपको सॉरी बोलना है तब थोड़ा सा हल्का सा पोलाइटनेस जरूरी है, इंटरव्यू में पोलाइटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट की। और सर जब हमें आंसर नहीं आ रहा है तो उस समय। बड़े पोलाइटनेस, सर सॉरी सर मैंने अभी नहीं पढ़ा हुआ है इसको, आई विल सी दिस। ओके ओके। ओके, ठीक है, ओके थैंक सर, यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक हाँ, यू। सिद्धांत देखो, ये थोड़ा सा ऑयल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना, ये ओपेक कंट्रीज क्या होते हैं, ठीक है? कौन सी कंट्री सर? ओपेक। ओपेक, हाँ, ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओके सर। ठीक है? रसिया से अब हम रिसेंटली, पहले बहुत कम लेते थे क्रूड ऑयल, अब रसिया से बहुत ज्यादा लेने लगे। अराउंड 10% ऑफ आवर कैपेसिटी हम रसिया से खरीद रहे हैं, ठीक है ना? ओके ओके। और ये क्या बोलते हैं, ये तो लिथियम आयन तो इतना चल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम आयन की बैटरीज है, ठीक अच्छा, है? लिथियम आयन। हाँ, इसको बारे में आपको पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है? ओके ओके। और सर अभी जो IOCL एल्यूमिनियम एयर बैटरी पे जो वर्क कर रहा है, हाँ, वो भी उसके बारे में। वो भी यूज होते हैं क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल में? हाँ, दोनों यूज हो रही हैं, ठीक है ना? ओके अभी ओके। इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। लिथियम आयन की बैटरी का एडवांटेज ये है कि इसको चार्ज करना कम टाइम में इसको चार्ज किया जा सकता है, इसकी ये एडवांटेज है, इसलिए ओके इसके ओके। ऊपर ज्यादा हुआ है, ठीक है ना? ओके CTPT, सर। ठीक है ना? ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के, ठीक है ना? इनकी स्टैंडर्ड रेटिंग हाँ CT ओके की सर। 5 एम्पियर होती है, PT की 110 होती है, स्टैंडर्ड रेटिंग, ठीक है? CT की सेकंड, 500 एंड PT की सर? 5 एम्पियर, CT की 5 CT की एम्पियर और PT की 110 वोल्ट, ठीक है ना? 110 वोल्ट। हम्म। ओके सर। और जब आप सिचुएशनल क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है ना, उसको बताना भी जरूरी नहीं है, अगर आपको आइडिया है तो बताना है, ठीक है ना? अगर वो पूछेंगे GM, ठीक है ना सर, कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ द व्हाट व्हाट GM विल डू सर, I think being a general manager, his work is to be डेली रिपोर्ट्स को देखना कि क्या प्रोग्रेस है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जनरल चीजों को मैनेज करना, ठीक है ना? सर जो आपने जो क्वेश्चन पूछे थे GM का, जनरल हाँ मैनेजर का, अभी कैसे सर, अब मतलब आइडिया तो नहीं है कि मतलब क्या करते हैं, तो उस केस में बोल सकते हैं कि मतलब कुछ आइडिया नहीं है करके। हाँ सर, आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे जनरल मैनेजर है तो मे बी सर रिलेटेड टू द मैनेजिंग ऑफ, जो भी कोई प्रॉब्लम आती है उसको मैनेज करना, उसको रेक्टिफाई करवाना, या ओके चीज को प्रॉपर वे में मैनेज करना, यही रूटीन काम होगा, ठीक है ना? ओके। ऐसा तो नहीं है जनरल मैनेजर जाके शिफ्ट में इंचार्ज बनेगा, ठीक है ना? हाँ। ठीक है, ओके सर। तो ये थोड़ा, जब वो नहीं है तो थोड़ा सा ऐसे करके उसको दिमाग लगाना कि क्या हो सकता है, ठीक है ना? ओके सर। और नहीं भी है, आ रहा है तो आंसर की सर आई एम नॉट अवेयर क्या काम होता है, अभी ओके किसी ओके। को जरूरी नहीं है कि आपको पता है, ठीक है ना? ओके सर। लेकिन ऐसा हो सकता है सर, ऐसा होगा, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है ना? और ये आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है दोनों, पहले भी मैंने प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछ लिया था हाँ हाँ सर, हाँ। स्नैप में, तो वो ठीक है, उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके सर। और इंट्रोडक्शन में देखो, आजकल आप अपना पेरेंट का इंट्रोडक्शन दो पहले, लेकिन पहले अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताओ, फिर अपने लास्ट में अपने पेरेंट्स को बताओ, के बारे में बताओ। माय फादर इज अ फार्मर एंड ही हार्ड वर्किंग एंड माय मदर इज हाउसवाइफ, ओके ओके। शी डू टेक केयर ऑफ मी एंड माय फैमिली, ठीक है ना? सर लास्ट में ना? हाँ, लास्ट में इसको कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। सबसे पहले अपना जो इससे रिलेटेड है वो इंट्रोडक्शन दिया, क्या आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम नागपुर, ठीक है ना? एंड आफ्टर दैट कंप्लीटेड माई बीटेक इन फ्रॉम देयर, सो ठीक है ना? माई प्रोजेक्ट वाज दिस एंड दिस, एंड माई फादर फ्रॉम माई फैमिली पॉइंट से, माई फादर एंड मदर डू ये जो है, एंड माई हॉबीज आर सिंगिंग, म्यूजिक एंड सो, ठीक है? ओके जो आप ओके। बता सकते हैं।
और गाना आपने अच्छा गाया है तो गाना भी सुन सकते हैं वो डेफिनेटली, तो वो पूछते हैं, ठीक है। ओके तो सर, ऐसा मतलब सर ऐसा होता है क्या कि अगर हमने बोले हॉबी है तो गाने को बोल सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि आई लाइक टू सिंग, जब मैं फ्री होता हूँ तो अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए मैं ओके गाना गाता ओके। हूँ, ठीक है। ये सब चीजें हैं। और ठीक है, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हो आप आगे, तो ठीक है ना, आईसीएल बताएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हो, ठीक है, मेरे पॉइंट। ओके सर, एंड सर जो